Alright. So today is very exciting day because today we are going to learn so many interesting stuff. How many of you have installed Data Warrior? Right? All of you have installed? No? Why? Okay, so it will be done. So yesterday we have done many. What were those things? आईडी बनी नहीं Let's write it down so that we can have it. So PubChem is one of them, but why PubChem? What was that? What we did in PubChem? Okay, structure of a compound of a drug. Okay, what else? What else we did? Chemistry at DMPL. Chemical is the database, right? What else we did? We did for PDB. What was PDB for? Protein. Okay. इसको न करो मैं तो कह What दूँ इसको we can see in PDB? हमें क्या दिखा वहाँ इसको ऐसे PDB में? नीचे उन्होंने The compound was binding to the क्लिक करो specific target site. What was the target? बॉक्स नीचे क्लिक करो कनेक्टर से मोड़े लिया ना It could be a protein, it could be an ion channel, it could be a receptor, right? So that was the target. Okay. What else we did yesterday? यार होता है यार Clinical trial we did. Okay. What else we did? बंद दबाओ We checked for daily map. Okay. What else we did? What else we did? We are starting Data Warrior, but we have not done anything yet on this. What else we did? और क्या करा हमने? I think we have done a lot of things yesterday. सोचिए, it's not about doing the things; it's also about understanding the things. Extracting drug from protein molecule. Okay, yeah, some visualizations called protein visualization, compound visualization, structural visualization. We did it from visualization, okay? Visualization. What else we did? What we understood yesterday? Compound structure, drawing, right? Chemical drawing we learned it yesterday. Drawing of chemical compound using which tool we used yesterday? किस साइड पे आप गए थे तो वहां पे एक ऑप्शन था draw and then we started drawing the compound और आपके ऑक्सीजन अलग हो जा रहा था, हाइड्रोजन अलग हो जा रहा था, क्या था वो? PubChem portal था, that was PubChem portal, okay? PubChem portal पे we tried that, okay? We also explored many other things, for example, smiles. We saw the smiles, but we never used the smile, right? So today we'll use the smile and see how the smiles can turn your molecule into a 2D representation. We saw the 2D representation, we saw the protein data bank file. Do you remember? ATOM. And then coordinates, X, Y, Z coordinates. You remember? Yes. So that coordinates are making basically the structure of the protein or the compound on the 3 dimensions because you were able to rotate the molecule. You saw that, right? You also saw the connection between the compound on DailyMed, the drug. Which drug we tried yesterday? On DailyMed, blockbuster drug. We go, right? Semaglutide, right? GLP-1 agonist. And I think today's news is with Eli Lilly. Eli Lilly is saying their diabetes drug is now pre-filled into injections, right? Pre-filled injections, you know? Yes, Pre-filled sir. injection diabetes के लिए आते हैं.
ह्यूमिलिन वगैरह के. Pre-filled injection is worth of a month of a dose in a single pen. So to ease the convenience to have a repeatable, patients have to buy multiple times the syringes, etc. Not required. So pre-filled one. On the other side, if you see Wegovy on the daily med, you have the injection as well as the tablet. You get a very sound scientific medical information on daily med, right? Do you see that? It's 100% accurate. If you need to go and check it, you can certainly do. Otherwise, आपको वो information, package insert and pharmacological information ऐसे नहीं मिलेगी. अलग-अलग fragmented information नहीं किसी website पे जाके मिलेगी, which is not sometimes trustworthy. क्योंकि कई बार content is getting or being generated by means of AI, and AI will see the problem of hallucination. क्या सीखेंगे हम? क्या देखेंगे? Hallucination. Hallucination पता है आपको क्या है? क्या होता है hallucination? Hallucination is a term that is used for a person who sees things that are not there. जो चीज रियल नहीं है वैसी चीज वो दिखाता है. It's not real, right? Hallucination. तो बहुत कुछ hallucination होता है और AI में भी hallucination होता है. We'll see that. We'll do that practical and show it to you where to remain cautious. We also discuss about the drug discovery process, right? And there are multiple steps. Do you remember that there are multiple steps where AI is contributing? We also checked for the disease one. We started the disease identification is a big problem. Did we mention that? है ना? समझ में आ रहा है आपको कि disease identification itself is a big challenge, and we can do a lot of things with that. After that, there was a target selection. Itself target selection. We checked for open target. Nobody said open target here. We checked the open target, right? Do you remember open target? Open targets, you were having association with the diseases and prioritization of the target. 2 tabs. You remember that? Connect कर पा रहे हैं आप? वो किस लिए है? Because you were getting thousands of targets for a disease, right? And you need to select how many targets for drug discovery? Just one you need to select. How would you do that? There were multiple criteria we discussed. Can you tell me some of the criteria? कौन से हम criteria? सोच के देखिए. इसमें कुछ भी देखने का नहीं है. सोच के देखिए. क्यों हो सकता है? कौन सा टारगेट आप सेलेक्ट करोगे? It's not required you always remember things. Just think about it. जो टारगेट डिसीज से लिंक्ड होगा वो. जो डिसीज से डायरेक्टली लिंक्ड हो, जिसको आप स्टॉप करें, लीडर वाला कॉन्सेप्ट, राइट? और उससे वो चीज रियली सॉल्व हो. नेक्स्ट, जो बॉडी में सिलेक्टिव हो वो स्पेशल प्लेस पे सेलेक्टिव हो, एक्सप्रेशन उसका प्रॉपर हो, स्ट्रक्चर नोन होना चाहिए, है ना? उसके लिए वैलिडेटेड कंपाउंड्स हो. टारगेट वैलिडेशन आपने पढ़ा है क्या? टारगेट वैलिडेशन is an approach where we ensure that this protein or micromolecule is certainly related to the disease, and if you modulate that, either to inhibit it, you activate it, you modulate it, and it will help in modifying the disease. उस पर disease, you can control on the disease through that target, right? वही चीज है. और it's just like a gateway, right? आप access किसी घर की, किसी premise की access control करते हैं ना with the gate. Same type you can say with the target. Target is a access to that disease via the molecule or therapeutic So these many things we did, and we said that we start with the disease. Sorry, I'm erasing this. Pardon. If I say we started with the disease, then we go to the target, and then we look for the compounds, right? These are the things. We go with the compounds. We consider at this point of time that we are looking for small molecule discovery.
small molecules to modulate the target. This is what we are looking at this point of time. In such cases, we need to discover new set of compounds, right? New set of compounds should come in. And ideally in a pharmaceutical company, कैसे चलता है system? You are working in a pharma company, for example, आप सब लोग एक pharma company में काम कर रहे हैं, and you have different business units. क्या होती है? Business units होती हैं. Business unit कैसे होती है? Disease selection unit, target selection unit, target identification and target discovery unit, compound selection unit, animal testing unit, and clinical prioritization. इस तरीके से बिजनेस यूनिट बनी होती है और उसमें आप काम करते हैं. आपको सिर्फ एक टीम से दूसरी टीम में काम मिलता जाता है और आपको वो काम करके देना होता है. जैसे मैंने आपको बोला कि विजुअलाइजेशन में बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, वेयर यू सॉ द प्रोटीन इन द कंपाउंड और आपको वो हाइड करके दिखाना. डिड आई मेंशन कि कैसे करना है? नहीं, आपने खुद करके दिखाया और वो खुद से ही करना है. आपको आप इतनी तरीके से ट्रेन हो चुके होते हैं कि आप वो काम को करना अच्छे से जानते हैं. We did mention about the due diligence yesterday, right? कैसे due diligence होता है. अगर आपको आज today's date पे टारगेट के लिए ड्यू डिलिजेंस करना है, you have lot of information to do that, right? आप ओपन टारगेट पे जाएंगे, उसमें different databases से देखेंगे किसका क्या डेटा आ रहा है, उसको क्रॉस चेक करेंगे. You also start connecting one database to another. The PubChem presents a lot of information for other databases also. Right? तो आपने एक से करा, दूसरे में गए, दूसरे में एडिशनल इंफॉर्मेशन निकालेंगे. You are trying to understand the thing. It's not just putting, copying and pasting and just giving it to somebody. This is called spray and pray approach. हम मंदिर में जाते हैं ना, तो वहाँ पे स्प्रे करते हैं ना पंडित जी, और वो हाथ जोड़ देते हैं. वैसा वाला ये काम नहीं है. स्प्रे एंड प्रे कि मैंने कॉपी पेस्ट करके सब रख दिया फाइल में और दे दिया. भाई तुम समझते हो जैसे समझते. दिस इज नॉट आवर वर्क. आवर वर्क इज टू एंश्योर व्हाट वी आर सेइंग इज कंप्लीट, करेक्ट, थॉरो and understandable by the someone else. How to interpret that data? That's our responsibility, right? So ऐसे बस कॉपी पेस्ट करके नहीं चलता है. वो अप्रोच अब आपको बदल देनी चाहिए और आगे बढ़ना है. तो कैसे एनालाइज करते हैं चीजों को? कंपाउंड जनरेशन के लिए जब मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स आपस में बैठती हैं तो एक प्रोजेक्ट डिस्कस होता है कंपनीज में. जब आप जैसे बड़ी कंपनीज में जाएंगे, जुबिलेंट में जाएंगे या किसी भी फार्मा कंपनी में जाएंगे, सिप्ला में जाएंगे, या फिर वहाँ पे ऐसी टीम बनाई जाएगी कॉन्फ्रेंस रूम में और उसमें बोला जाएगा कि वी वांट टू वर्क ऑन से GLP-1 agonist, something like that, and we already have the disease in mind, weight loss. The weight is a disease. Second is, or you can say the insulin, the diabetes insufficiency. Because अगर कोई पर्सन खाना ही कम खाएगा तो उसकी डायबिटीज भी मेंटेन हो जाएगी, राइट? उसके डुअल रोल है. तो इस तरह से डिसीज सेलेक्टेड है, टारगेट भी सेलेक्टेड है. सम वन ऑफ यू विल आस्क कि टारगेट कौन सा लेना है इसमें, which target we should pursue. तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन टीम जाएगी. इट्स अ वेरी वेल नोन टारगेट. डू वी हैव एनी अदर कंपटीटर इन मार्केट, एनी अदर ड्रग टारगेट अवेलेबल which is better than GLP-1? तो इस तरीके के डिस्कशन होते हैं और GLP-1 जैसे सेलेक्ट कर लिया गया. देन द कंपाउंड सिलेक्शन टीम पे आ जाएगी. कंपाउंड कैसे बनना है, क्या बनाया जाएगा. तो आप सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस करेंगे. क्या करेंगे? आप क्या करेंगे कि आप GLP-1 के जितने भी कंपाउंड्स हैं, चाहे वो नोन है या फिर नॉन क्लिनिकल है, अप्रूव्ड है, या फिर दे आर इन दी प्री क्लिनिकल पाइपलाइन, उस सबको निकाल के डेटा एनालाइज करना है. यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन इफ यू नो व्हाट हैज बीन डन इन द पास्ट, राइट? कर सकते हैं ना. जब आपको पता है कि पीछे क्या हुआ है, पिछले सालों में उस पर क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं, राइट? कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. हर डिपार्टमेंट वैसे ही चलता है.
एक किसी सीनियर पर्सन को ज्यादा बड़ा रोल इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्होंने वो सारे सिनेरियोज देखे हुए होते हैं, राइट? किसी भी डिपार्टमेंट में देखे होते हैं, नॉट ओनली एकेडमिक सेटअप बट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट होगा, सीनियरिटी वाइज ही पर्सन उसी चेयर पे बैठते हैं क्योंकि उनके सिनेरियोज उनके देखे हुए हैं, नॉन सिनेरियोज हैं। ऐसे ही डिस्कवरी प्रोजेक्ट में भी नॉन डेटा को कलेक्ट किया जाता है। हाउ विल यू कलेक्ट द नॉन डेटा? अगर GLP-1 टारगेट्स के लिए चाहिए तो कहाँ से मिलेगा वो डेटा? AI से कैसे मिलेगा? कोई भी डेटा मिलने के लिए हमें डेटा बेस की जरूरत है, राइट? और हमने डेटा बेस में सारे पढ़ लिए, तो हम ऐसा एक टारगेट ले लेंगे, उसके हम एल्जाइमर का एक टारगेट ले लेते हैं, से बेस 1 है क्योंकि कंफर्टेबल है, हमको पता है स्मॉल मॉलिक्यूल है, सब कुछ है, तो उस टारगेट का हम डेटा निकालेंगे बेस 1 से। BACE1 बेस 1, ठीक है? तो ऐसा नोन कंपाउंड ले लेते हैं, नोन कंपाउंड का डेटा सेट भी डाउनलोड है। Yesterday we did not download the data, we only saw and checked the profile of the from the database, right? So we'll go to PubChem and search for target which is base 1 and we'll see what would we get. Okay, so should I show it with you or you want to try it first? मैं आपको शो करूं या पहले आप ट्राई करेंगे अपने आप से? मैं शो नहीं करूंगा, ऐसे आप ट्राई करेंगे। Do it. Go to PubChem or Campbell and check for target related compounds. और आप मेरे को वो नंबर बताएंगे कितने नंबर आपको मिल रहे हैं इन for base 1, BACE1. BACE1 base 1. Open हो गया? BACE1 base 1. BACE1. What you are searching is the base 1 compound, right? हमें टारगेट से सिलेक्ट करना है, you need to find target of टारगेट के सारे कंपाउंड होते हैं। देखिए डेटाबेस किस तरह से अरेंज है, राइट? Base 1 target 1 search मिल रहा है बेस 1 टारगेट, राइट? बेस 1 17 कंपाउंड्स मिल रहे हैं आपको, हाँ? लेकिन आप इस पे जाइए, जीन सिंबल बेस 1
17 कंपाउंड्स आ रहे थे ना, अब जाइए नीचे, ये बेस 1 का पेज है, इसमें बेस 1 सिनोनिम्स इस समय नीचे ये कितने कंपाउंड्स हैं कैपिटल, इसमें बेस 1 है टारगेट आइटम, बेस 1 है टारगेट। यहाँ जीन्स पे जाएंगे, जीन्स बेस 1 को सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वन and here you get the chemical bioactivities, right? यहाँ पर compound है, अभी दो है, कितने कंपाउंड्स हैं? 20,881 कंपाउंड्स, राइट? देख रहे हैं IC50 वैल्यू गिवन है 20। देखिए आपको पक्के में कितने हैं? go to genes, select this one, go to bioactivities, in dot one in hyphen one नहीं डाला, एक तो बेस 1 ही डाला, आपको करेक्ट करके लिखना। Okay, look at my screen there. ओके, यहाँ देखो कब क्या आ गया मैं आपको आ गया। अभी इसमें अरेंजमेंट कैसे है ये पूरा समझना पड़ेगा। PubChem is a database for chemical compounds and their activities, ठीक है? ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है। ये this is your compound, ठीक है, ये कंपाउंड है। इसके कंपाउंड बहुत जगह पे बनाया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसके एसेज होते हैं। एसेज समझते हैं, प्रोटीन के साथ उसकी बाइंडिंग देखी जाती है, एक्टिविटी देखी जाती है। तो कंपाउंड का रिलेशन किससे है? टारगेट से, राइट? हेलो, लिसन, राइट? कंपाउंड का लिंकेज किससे है? टारगेट से है। अगर आप कंपाउंड को स्टार्ट पॉइंट लेंगे तो आपको टारगेट मिलेंगे। कितने टारगेट्स में? टारगेट T1, T2, T3, इन सब में ये देखा गया है कि इसकी एक्टिविटी है। इफ यू स्टार्ट विद कंपाउंड, बट हमने तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा। वाज माय क्वेश्चन लाइक कि इस कंपाउंड के लिए कितने टारगेट हैं, ये क्वेश्चन था मेरा? नहीं, क्वेश्चन था कि बेस 1 के लिए कितने कंपाउंड है। सो वी वर आस्किंग रिवर्सली, राइट? वी वर सेइंग start with this target and look for all the compounds means C1, C2, C3. ये तो पूछा हमने। So we'll start with a compound with a target and look for the compound. So इसके लिए हम will go to the PubChem और टारगेट का है तो कल आपको पता है ओपन टारगेटेड जीन्स से, यानी जीन से रिलेटेड कोई चीज आएगी। तो एक बार देख लेते हैं। We'll go through the search and we'll say base 1. ये base 1 कहाँ से आया? Base 1 is one of the targets for Alzheimer disease. One of the targets. कितने targets हैं? बहुत ज़्यादा हैं।
अगर आप ओपन टारगेट्स में डाल के देखेंगे, ओपन टारगेट्स में जाएंगे और वहां पे सर्च ऑप्शन आ रहा था ना टारगेट के ऊपर, डू यू रिमेंबर? वहां अगर आप बेस 1 डालेंगे तो आपको मिलेगा आई कैन शो इट टू यू वन ऑफ द टारगेट्स, ठीक है। सो बेस 1 पे मैंने बस सिंपल क्लिक कर दिया एंड सेट की जीन्स पे आ जाते हैं। 41 जीन्स मिल रहे हैं, कुछ अलग अलग नाम से भी होंगे, बट दैट्स फाइन, हमें उससे इतना नहीं है, जब हम उसकी रिसर्च करेंगे तब। एंड द फर्स्ट टारगेट इज बेस 1, तो हम बेस 1 ले लेते हैं। नाउ वी सेट विद दिस वन, हम टारगेट पे पहुंच गए, अब हमें सारे कंपाउंड्स देखने हैं। वो सारे कंपाउंड जो भी लिस्टेड होंगे वो एक्टिविटीज में लिस्ट होते हैं, क्योंकि उनके लिए एक्टिविटी हमें कैसे पता लगेगा कोई कंपाउंड बेस 1 के लिए है, बिकॉज उसकी एक्टिविटी रिपोर्टेड होगी, राइट। सो विल गो टू केमिकल्स एंड बायो एक्टिविटीज एंड वहीं पेज डाउन पे आपको देखिए 20,881 कंपाउंड्स ऐसे मिल जाएंगे। फर्स्ट रीच टू दिस प्लेस, यहां तक आ जाएंगे, ठीक है। 20,000 कंपाउंड्स मिल रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ और टारगेट दूंगा तो भी आप आ जाएंगे, यहां तक कंपाउंड निकाल सकते हैं, आपको ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये थोड़ी सी डिफिकल्टी कि ये नहीं पता लग रहा है कि कौन से कोई अप्रूव कंपाउंड है, क्लिनिकल फेज का है या नहीं है। तो उसके लिए अलग अलग डेटाबेसेस हैं, उनको मतलब आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल ड्रग बैंक है, दूसरा IUPACR है, इन सब में आपको इंफॉर्मेशन बहुत क्लियरली तरीके से मिल जाती है। बट सारे कंपाउंड्स जो भी एकेडमिक, ये कहां से आ रहे कंपाउंड्स? ये कंपाउंड्स आप लोग पब्लिश करते हैं, जब आपके प्रोफेसर्स पब्लिश करते हैं ना बहुत सारे जर्नल्स में कि हमने ये कंपाउंड सिंथेसाइज किया, ये टेस्ट किया, इसकी एक्टिविटी, वहां से ये चीज एक्सट्रैक्ट होती है और डेटाबेसेस में स्टोर होती है, वहां से ये डेटा बन रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, अगर आप कोई पब्लिकेशन लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड समवेयर, कहीं ना कहीं एग्रीगेट हो रही है डेटा। ऑलराइट, तो कितना आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमें कोई सिंगल कंपाउंड चाहिए, ठीक है। जैसे हम इसमें ऐसा करते हैं, we'll go to another side जहां से हमको एक अच्छा कंपाउंड लेना है, नोन कंपाउंड। कैसे होता है? IUPACR, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, नॉट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फार्माकोलॉजी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फार्माकोलॉजी, गाइड टू फार्माकोलॉजी। IUPACR एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये चीजें बहुत स्ट्रक्चर्ड मिलती हैं। गाइड टू फार्माकोलॉजी का URL है, और इस तरीके से वो आपको विजिबल होगा। इफ यू टाइप IUPACR गाइड टू फार्माकोलॉजी, तो अभी मैं समझाता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। हमको एक मोस्ट पोटेंट कंपाउंड चाहिए एज अ स्टार्ट पॉइंट, जिसके बेसिस पे हम न्यू कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो IUPACR मिल गया, यहाँ पे बेस डाल देते हैं, बेस 1 BACE1, BACE1, तो आगे ये बीटा सेक्रेटेज टारगेट फर्स्ट A1 पेप्सिन, ठीक है। एंड इसमें एक टेबल आएगी इस तरीके से, इस तरीके से टेबल दिखेगी आपको, डाउन करेंगे तो बेस पर सर्च किया, बीटा सेक्रेटेज आया, उस पर क्लिक किया और उसके अंदर फिर आपने स्क्रॉल करा तो ऐसी टेबल मिलेगी आपको, मिल रही है पेज पर स्क्रॉल करने पे मिल रही है, लोडिंग हो रहा है। आ गया।
टेबल आ गई। अब आपको कुछ चीजें बतानी है इसमें। सबकी टेबल आ गई है, लोड हो रहा है। ओके, मैं चेक करके आया आपका स्लोली जब आप प्रोटीन के बारे में जानें जब उसमें भी जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यू विल गेट दिस टेबल। अब इस वाली टेबल में बहुत क्लियरली कंपाउंड्स दिख रहे हैं कि कौन कौन से हैं जिनके लिए ये रिपोर्टेड एक्टिविटी। देखिए एक्टिविटी वैल्यू दिख रही है, पैरामीटर भी दिख रहा है। इसमें कहीं पर बेंजीन रिंग मिली हुई है, देखिए बेंजीन रिंग से बनी है। अब बता सकते हैं कुछ कंपाउंड्स में वो रिंग बनी है, कहीं पे नहीं बनी। व्हाट इज दैट? वो है क्या? क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है। आप उस पे माउस होवर करिए, बस क्लिक मत करिए, और देखिए कुछ लिख के आता है क्या? स्मॉल मॉलिक्यूल और नेचुरल प्रोडक्ट। ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, बायोथेरेपेटिक नहीं है। कौन सा? जिसका नाम दिया हुआ है, ठीक है, कंपाउंड 6। इनहिबिशन शो करता है 9.9 pKi वैल्यू है इसकी, ठीक है, दी हुई है 29। जहां पे टी लिखा है उसका क्या मतलब है? स्पीशीज स्पेसिफिक टारगेट है ये इसके लिए, ओके। और जहां पे ये स्ट्रक्चर जैसा बना है वो क्या है? इसका एक पीडीबी स्ट्रक्चर भी है, co-crystallized ligand, you can see the interaction, right? तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन उसमें ये रहती है। जितने कंपाउंड्स होंगे इसमें बहुत ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ही पोटेंट कंपाउंड्स के लिए ही लिस्टेड है, और विद प्रॉपर रेफरेंसेस है कि किस कंपाउंड को कहां से आ रहा है। देख रहे हैं आप? स्टिल इज अ वेरी गुड लिस्ट ऑफ कंपाउंड, ठीक है। कहीं पे नंबर 1 भी लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो कंसेंट्रिक सर्कल्स में 1 करके लिखा होगा। इसमें प्राइमरी टारगेट मतलब वो इसी टारगेट के लिए बनाया गया है कंपाउंड। ऐसा नहीं कि ये टारगेट डिफरेंट है और ड्रग कहीं और की है, ठीक है। तो एक हम इसमें कंपाउंड 16 दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आपको कंपाउंड 16। एक बार ये देखते हैं कि कंपाउंड 16 कैसा है। सो वी क्लिक ऑन कंपाउंड 16। Okay, compound 16 is coming. Can you identify any smile anywhere? Compound 16, first compound है, right? Can you identify any smiles? Compound पे जाइए अंदर, देखिए इस तरह से कुछ पेज आएगा आपको, ठीक है। अब इसमें मेरे को स्माइल्स आएंगे इस कंपाउंड की, कैसे मिलेगी? कंपाउंड में स्माइल्स हैं, वो जो सिंगल लाइन नोटेशन होता है ना, वो वाला देखना है। देखिए मिल रहा है आपको? सोच के देखिए कहां से मिल सकता है।
कंपाउंड 16 क्लिक करना है। ये कंपाउंड 16 है, उस पे लिखा है कंपाउंड नेम है 16। जैसे यहाँ कंपाउंड 15 लिखा है ना, इसी टाइप से कंपाउंड 16 लिखा होगा। स्क्रॉल करिए, कंपाउंड 16 ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कंपाउंड है ना, टेबल 6 में। कंपाउंड 16 उसकी एक्टिविटी नहीं है, रेफरेंस वैल्यू नहीं है, 16 इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। उस पे क्लिक करेंगे तो आपको पेज मिलेगा, बट मेरे को स्पाइस चाहिए उसकी। कैसे मिल सकती है मेरे को स्पाइस? स्ट्रक्चर को फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, स्पाइस लिखा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ कहाँ लिखा है। स्माइल्स यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल कैनोनिकल स्माइल, पता है आपको कैनोनिकल स्माइल एक स्टैंडर्ड स्माइल है। इसको कॉपी कर लें, कॉपी कर लेते हैं। स्माइल को हमने यहाँ पे डबल क्लिक करा और कॉपी कर लिया। अगर ये स्माइल यहाँ पे नहीं होती तो क्या कर सकते थे, वहाँ पे कैम्बेल की आईडी दी हुई है, तो कैम्बेल की आईडी पे क्लिक करते हैं, कैम्बेल मिल जाता, वहां से स्माइल करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे गिवन है तो हमारा वर्क इज वेरी इजी। यहाँ पे कॉपी कर लिया हमने, और हम क्या करेंगे अब, वापस सिंपली पबकेम पे जाके ड्रॉ, सुन लीजिए, कॉपी कर लिया स्माइल, सेलेक्ट ऑल कैनोनिकल स्माइल्स और आइसोमेरिक स्माइल होती है, कर लिया आपने। We'll go to PubChem, we go to draw, but we don't draw. This time we will copy and paste. We will copy and paste the smiles. देख लीजिए कैसे करेंगे। Hello, listen. All eyes here, all eyes here. All eyes here. देखिए एक बार करके तो उसके बाद में देखेंगे। We'll go to PubChem. We'll go to PubChem again. Go to PubChem again. होम पेज पे चले जाते हैं, PubChem पे ड्रॉ आ गया, स्माइल्स ऑलरेडी कॉपी है। आपको देखिए ऊपर ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे स्माइल्स का, स्माइल्स स्मार्ट स्टैंडर्ड इंची, ये ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे स्माइल्स सेलेक्ट करके कंट्रोल V एंटर एंड यू कम आउट हियर। Means smile contains the information about the compound structure, right? करके देखिए, are you able to do it? हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो गया। Alright. किस किस का हो गया? स्माइल्स टू स्ट्रक्चर जनरेशन, स्माइल्स टू स्ट्रक्चर जनरेशन। आर यू एबल टू डू इट? हो रहा है, कॉपी पेस्ट, देन यू गेट द स्माइल्स। हो रहा है आपके एंड पे, कॉपी द स्माइल। यस, कैसे कॉपी करेंगे? डबल क्लिक करिए ना यहाँ पे, डबल क्लिक नहीं, ऐसे पूरा करना है। ये तो 2 कार्बन है। यस, डबल क्लिक, copy, correct? Are you going to do that? Paste, slide, paste, control V. Very good.
एंटर एंटर उन्हें पेस्ट कर दो ऊपर स्लाइड हाँ क्लिक करके एंटर करें एंटर यस आ जाएगा आ गया ना वेरी गुड आई लाइक इट कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए ऊपर कौन सा कनेक्टेड है मोबाइल नेटवर्क है हो जाएगा कॉपी यस कॉपी कंप्लीट कर दीजिए लेफ्ट यस मैं इसको प्रेस करके रखें इसको लेफ्ट अभी नहीं कॉपी नहीं किया आपको सेलेक्ट करके कॉपी करना है वेरी गुड ऑल्ट सेलेक्ट यस गुड डन क्योंकि 16 कंपाउंड ऐसा है आप ले सकते कंपाउंड टू कंपाउंड है सिंपल ठीक है डिफरेंट वेरी गुड दिस इज गुड एंटर नहीं किया यस वेरी गुड वर्किंग क्या वो कॉपी फ्रेश हो रहा है so it will come right ठीक है डन so what will you do इसको हम there are so many things here export दिख रहा है ऑप्शन है कि export एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट में यू कैन सेव इट अगर आपको इसकी इमेज चाहिए कैसे करेंगे चेंज कर देता हूँ ठीक है एक बार हुआ जाएगा तो आप उसको अगर आपको इसका इमेज चाहिए तो कैसे लेंगे स्क्रीनशॉट सिंपल है और अगर आपको वो फाइल भेज तो उसमें और भी ऑप्शंस आते हैं फॉर एग्जांपल एसवीजी का फॉर्मेट आता है जेपीईजी का आता है बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं दैट्स फाइन अभी हम क्या करेंगे इस कंपाउंड को एक टेक्स्ट फाइल में सेव करेंगे थोड़ा सा और ट्रिकी चीजें करते हैं है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे अभी तक हमने लाइफ बहुत इजी रखी है अपनी थोड़ा टफ चीजें करते हैं तब मजा आएगा राइट तो अभी हम इसको इस जो स्माइल है इसको कॉपी ऑलरेडी है आपके उसमें क्लिपबोर्ड में तो एक नोटपैड की फाइल बनाते हैं इसको नोटपैड ओपन कर लीजिए नोटपैड नॉट वर्डपैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नोटपैड सबके में होता है तो नोटपैड कर लेते हैं और उसके लिए इंटरनेट भी नहीं चाहिए नोटपैड ठीक है नोटपैड ले लेते हैं नोटपैड में यहाँ पे स्माइल कॉपी कर पेस्ट कर लेते हैं पी कर लिया देखिए मेरी तरह से इस तरह से आ जाएगा आ गया ये स्माइल आ गई लेकिन हमें क्या करना है एक टेबल बनाना है तो टेबल में तो हेडर भी होता है तो इसको सेकंड रो पे ले आते हैं उसके ऊपर एक हेडर बनाते हैं लिखते हैं स्ट्रक्चर ठीक है तो
तो क्या करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, इसको सेकंड रो पे ले आएंगे। मैं फर्स्ट सी के पीछे क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, सेकंड रो आ गया, एंड देन विल से स्ट्रक्चर एस कैपिटल एस E R U C P U R E स्ट्रक्चर। ठीक है, सर मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया उसमें, सर बोले कि दिस इज स्ट्रक्चर, राइट, सिंपल, वेरी सिंपल। Second line में smile को भी visit कर देंगे। So smile is your structure और structure is column। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज है। हम क्यों इतना बोल रहे हैं इस बात पर समझ में नहीं आ रहा है, राइट? ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, लेकिन सेव करना एक ट्रिकी पार्ट है इसका। सेव करना सबको आता है, कंट्रोल एस कर लेते हैं, कंट्रोल एस फॉर सेव। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक तो आप कहाँ सेव कर रहे हैं अपना देख लीजिएगा, मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ सेव। लेकिन नाम क्या रहा है सेव करने में, ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर डॉट टीएक्सटी आ रहा है, वो नहीं चाहिए हमें, स्ट्रक्चर डॉट एसएमआई चाहिए, एसएमआई फॉर स्माइल्स, गुड, एसएमआई स्माइल। तो कैसे करेंगे, इसमें डबल कोट्स में लिखेंगे। अगर आप डबल कोट्स में नहीं सुन लीजिए, क्योंकि अभी प्रॉब्लम आएगी, 100% प्रॉब्लम आएगी। हेलो, स्ट्रक्चर डॉट एसएमआई फाइल चाहिए, डबल कोट्स में लिखेंगे, अदरवाइज डबल कोट्स में करेंगे तो वो स्ट्रक्चर डॉट एसएमआई डॉट टीएक्सटी बन जाएगी, और फिर वो नोट उसमें खुलेगी नहीं, डेटा वॉरेंट। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको। जो लिखा हुआ है उसमें से डॉट टीएक्सटी को हटा के, डॉट टीएक्सटी में टीएक्सटी को हटा के एसएमआई लिखता हूँ, एंड डबल कोट लगाता हूँ बाद में, एंड सबसे पहले कितना मैं करता हूँ, डॉट एसएमआई इन डबल कोट्स, ठीक है। ये आपको सुना आपके लिए डबल कोट क्यों लगा रहे हैं, जिससे डॉट टीएक्सटी उसमें अपेंड ना हो जाए और वो खराब ना हो जाए। ठीक है, सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, एंड नाउ आई विल ओपन डेटा वॉरियर। That's fine. इसलिए लगानी है, क्यों लगानी है? इसके नेम डबल कोट्स में करेक्ट, क्यों लगाना है? क्योंकि डॉट टीएक्सटी उसमें ऐड क्लियर है सबको? सेव कर लिया हमने, डेटा वॉरियर ओपन कर लिया, एक बार ओपन डेटा वॉरियर, डेटा वॉरियर सिस्टम देख लीजिए, हो गया सबके पास डेटा वॉरियर, सबके पास है, ओपन हो गया।
नोटपैड नोटपैड राइट पेस्ट करिए आगे अब इसमें एक स्ट्रक्चर कॉलम बना है तो इसको एक लाइन नीचे आइए सेकंड लाइन में लेके आइए नीचे आ गया ऊपर जाइए एरो की यहाँ पे लिखिए नेम स्ट्रक्चर 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 सेव कर लीजिए इस फाइल को फाइल सेव एज कंट्रोल एस ऑप्शन होता है इसका क्विक कंट्रोल एस सेव एज डॉक्यूमेंट में सेव कर दीजिए स्ट्रक्चर डॉट एसएमआई डॉट स्पेस नेम डॉट एसएमआई फुल स्टॉप राइट एसएमआई अब इसको डबल कोट में कर देंगे जिससे ये पीछे का डॉट एक पीछे एक आगे और सेव कर लीजिए हो गया सभी फाइल से हो गई डेटा वॉरियर आ गया डेटा वॉरियर सेव एक बार कॉल कर लेते हैं फाइल को डेटा वॉरियर में ओके लुक एट हियर we have the data warrior open here we'll go to file data warrior file open and if I go to desktop all files open फाइल ओपन नीचे उसमें लिखा होगा ना डेटा वॉरियर की फाइल सेलेक्ट ऑल फाइल्स डेटा वॉरियर कुछ लोगों ने किया है राइट ऑल फाइल्स अपना फाइल स्ट्रक्चर डॉट एसएमआई का ना ओके ओपन करिए इसको वेरी गुड ये कंपाउंड है इस कंपाउंड से बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे बहुत कुछ करेंगे विंडोज चलिए डाउनलोड कर लीजिए
you are able to open the file in data warrior. Okay, very close the list. फाइल ओपन करके ओपन कर लीजिए एसएमआई फाइल जो आपने डाउनलोड की थी वाली फाइल सेव करिए वही करिए फाइल ओपन डेटा हो गया फाइल ओपन हो गया कंपाउंड सेम दिख रहा है जैसा था चेंज तो नहीं हुआ इसको बड़ा करके दिखाइए कंपाउंड जैसे मैंने बड़ा किया सॉल्व करिए आपने लिलिक्स वाला डाउनलोड कर लिया है लगता है हाँ आपने लिलिक्स डाउनलोड कर लिया है आपको विंडोज करना है डाउनलोड सब कुछ ठीक है क्या लिखा है जस्ट करो जस्ट जब नेक्स्ट वर्जन आप देखेंगे हाँ इसमें ठीक है आई रेडी ठीक है 2 घंटे हम 2 घंटे हो गए मेरा 4 घंटा नहीं मिलना ना चार घंटे यही फर्क होता है अपने हैंड के साथ वो अपने पैसे उसका खेती मर जाता तो लिखी कैसे file open data warrior file open SMI right
ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿੰਗ ਦੇ ਦੇ ਸਿਸਕੋ ਕਨੈਕਟ किससे कनेक्ट कर रहे हैं? कोई भी इसका भी 10 साल लगते हैं, ऐसी जगह टाइम कैसे होते हैं? 10 साल 5 साल नेटवर्क कनेक्शन में पेमेंट चल गया होगा नेटवर्क नहीं हो नहीं रहा है, वही आ रहा है 576 फेल हो गए। चौंतीस 494 टाइम आउट 285 476 105 हाँ ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ जब आप फोन करते हैं किसी को, फोन नहीं उठता है तो क्या बोलता है? The person you are just not reachable. वो ये नहीं बोलता ना कि फोन उठा के रहे। The person is not picking your phone. ऐसा नहीं बोलता ना। आज कनेक्ट नहीं हो रहा because so many people are connected. इतनी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है डेली बेसिस पे। अलग तरीके से देखना ऑलराइट, जिस जिसने कर लिया है वो एक्सरसाइज को प्रोसीड करते हैं।
बाकी लोग भी कर लेंगे, ठीक है। नाउ यू आर वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, राइट? यू आर वर्किंग एज ए कंपनी एज ए कैटरिंग फॉर आपको और वहां पे आपको क्या टास्क मिला है? योर टास्क इज टू जनरेट न्यू सेट्स ऑफ कंपाउंड। या फिर आप किसी लैब में काम कर रहे हैं और आपके प्रोफेसर ने बोला है आई हैव डिजाइन दिस कंपाउंड, आई वांटेड टू डिजाइन मोर सच कंपाउंड, तो आप कैसे करेंगे? आप कंपाउंड देखेंगे एंड यू विल ऐड हेलो you will design new sets of compound, more sets of compound। कैसे? एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, R ग्रुप सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने, इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होता है। R ग्रुप सब्स्टिट्यूशन, मिथाइल लगाया, इथाइल लगाया, फंक्शनल ग्रुप चेंज करा, इस तरीके से चेंज करते हैं फंक्शनल ग्रुप को भी। तो वही चीज हम आजकल AI से करते हैं, सॉफ्टवेयर से करते हैं, कंप्यूटेशनल मेथड से करते हैं, सो दैट इट कैन बी फास्ट, मोर एक्यूरेट। तो करके देख लें एक बार ये कि कैसे कंपाउंड डिजाइन हो सकता है इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स और सेकंड्स। ओके, सो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है केमिस्ट्री फ्रॉम केमिकल स्ट्रक्चर, दिख रहा है ना ऑप्शन? तो हम अभी केमिकल स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, विल गो टू, कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, जनरेट बिल्ड एवोल्यूशनरी लाइब्रेरी, मिल रहा है? इस पर क्लिक कर लेते हैं, build evolutionary library and you will get option like this, build evolutionary library, ठीक है? मिल गए बहुत सारे। अब आप सब लोग मेरी स्क्रीन को एक बार देख लेंगे so that you can repeat it at your end, easily आप उसको रिपीट कर सकते हैं। ऊपर जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आर नोन जो आपको डिफॉल्ट में दिख रहे हैं, बट हमको वो नहीं चाहिए। क्या हम उनके डेरिवेटिव्स बना रहे हैं? नहीं, हम अपने स्ट्रक्चर के डेरिवेटिव बना रहे हैं जो कि हमारे को हमारे प्रोफेसर ने दिया है, राइट? हमारे मैनेजर ने दिया है, हमारी प्रोजेक्ट टीम ने दिया है। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम डिफॉल्ट लिखा है ना, उस डिफॉल्ट को चेंज कर देंगे। हमारे कॉलम का क्या नाम है? स्ट्रक्चर कॉलम, तो फ्रॉम ए स्ट्रक्चर कॉलम कर देंगे, ठीक है? तो फ्रॉम ए स्ट्रक्चर कॉलम, हमारा एक कंपाउंड था ना टेबल पे, तो 1 कंपाउंड आ गया, ठीक है? अब हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जनरेट न्यू सेट्स ऑफ कंपाउंड्स, सो अप्रूव ड्रग लाइक कंपाउंड्स को बनाओ और क्राइटेरिया ऐड कर लेते हैं, ऐड क्राइटेरिया से मॉलिक्यूलर वेट, ऐड क्राइटेरिया, हम चाहते हैं मॉलिक्यूलर वेट 400 से लेकर 550 मॉलिक्यूलर वेट के हम कंपाउंड्स बनाएं। सो 450 to 550 मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स हम बनाएंगे, ठीक है? ये हम क्राइटेरिया उसको सेट कर देते हैं क्योंकि हमारे प्रोफेसर ने बोला है कि इसी रेंज के कंपाउंड्स आपको बनाने हैं, इन्हीं में ही डेरिवेटिव्स बना रहे हैं, ठीक है? एक बार देख ले, देखिए मैं आपको ओके करूंगा, देखिएगा क्या होगा, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बहुत सारे साइकिल्स दिए हुए हैं कि हमें कितनी साइकिल्स जनरेट करनी है, राइट? सो विल से मैं 200 सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम जीपीयू एनेबल्ड है, फास्ट है। आप 100 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, ठीक है? 200 पर साइकिल में कितने कंपाउंड बनाऊंगा? से 512 कंपाउंड बनाऊंगा पर साइकिल, और कितने रिटेन करूंगा? से 32 कंपाउंड्स को मैं रिटेन करूंगा। समझ लेते हैं क्या कर रहे हैं, समझ लेते हैं, नो प्रॉब्लम। आप एक बार देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं ओके करूंगा, चलिए से ओके, देख लें कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है करना, करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है समझना कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है? मैं एक बार ओके करूंगा तो देखते क्या होता है। ऑल आईज हियर, ये कितने नंबर्स हैं? ये कितने? अभी भी आप इधर ही देख रहे हो, आपको उधर देख रहे हैं, गलत है, उधर देख रहे हैं, ठीक है? Shall I start? Yes, sir. 1, 2, 3 start. Yes, sir. देख क्या होगा, आपको क्या लगता है, क्या मैजिक हो जाएगा?
स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे। और क्या लगता है क्या मैजिक होना चाहिए? ओके ठीक है, विल स्टार्ट 1 2 3 आपको बोलना है 1 2 3। देखिए क्या हो रहा है, यू आर जनरेटिंग स्ट्रक्चर्स थ्रू कंप्यूटेशनल मेथड। क्राइटेरिया आप डिसाइड कर रहे हैं। जो काम एक मेडिसिनल केमिस्ट करता है, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट करता है, एक सिंथेटिक केमिस्ट कर रहा है, वो एक सॉफ्टवेयर कर रहा है। मोर स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया आप लगा सकते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, एक क्विकली जनरेट हो सकते हैं कंपाउंड। ठीक है, देखिए हो रहे कितने 32 कंपाउंड्स को रिटेन कर रहा है ईच साइकिल, और एक साइकिल में 512 कंपाउंड्स जनरेट कर रहा है वो ना। मल्टीपल साइकिल्स रन हो रही हैं। और स्टार्ट पॉइंट क्या है इसका? जो आपने डाउनलोड करके कंपाउंड किया था वो स्टार्ट पॉइंट है। स्टार्टिंग एंड जनरेटिंग एंड दिस इज डन। अभी नीचे टेबल करके ऑप्शन होगा, लेट मी गो टू दैट टेबल। पहले आप ये एक्सरसाइज इतनी कर लीजिए, ऑल योर कंपाउंड्स आर हियर। यू सी हाउ मेनी कंपाउंड्स? 6500 अराउंड कंपाउंड्स we generated, but ठीक है, we'll come to that point. First generate these compounds. इतना कर लीजिए पहले। वेरी गुड। बहुत छोटा कंपाउंड है। छोटे फ्रेगमेंट्स मॉलिक्यूलर वेट कंप्लीट कितना है? 100 है, रेंज 50 है। छोटे फ्रेगमेंट्स molecular weight range molecular weight shows criteria that is the molecular weight range। कुछ भी डालिए अपने हिसाब से, जिस हिसाब से कंपाउंड बन गया बस किसी पेन ड्राइव है? एनीबॉडी हैज पेन ड्राइव? पेन ड्राइव Yes, तो आप एक बार पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर ले लीजिए। नहीं हो रहा क्योंकि आप कह रहे हैं क्राइटेरिया डिफरेंट है। आपने सिमिलर टू एनी सिमिलर टू स्ट्रक्चर बनाएगा। क्राइटेरिया करेंगे फॉर एग्जांपल अगर सिमिलर बनाना है तो पूछेगा ना किससे सिमिलर बनाना है, इसलिए वो नहीं चल रहा। अब आप मॉलिक्यूलर वेट की रेंज दीजिए, या आपने वही करा कि सिमिलर टू एनी डायरेक्टली कस्टम स्ट्रक्चर नहीं, ये नहीं चाहिए। इसको मॉलिक्यूलर वेट ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। अब ये रेंज नहीं दी, कॉपी की कॉपी अब क्लीन हो गया ना। रेंज नहीं, किस रेंज के आपको कंपाउंड बनाना है? आप सोचिए आप कौन से लेके कंपाउंड बना रहे हैं? 300 से लेकर ओवर की रेंज नीचे नीचे नहीं दिख रहा।
क्योंकि आपकी जो रेजोल्यूशन है ना वो इधर ये सिलेक्ट करके उठा लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा किसको ऊपर ले जाएंगे इसको हाइड कर आप ही करिए मैं नहीं पेनड्राइव में फाइल अंदर मेरे पास आया था ये चाहिए वो तो व्हाट्सएप से कॉपी कर लो कोई मतलब ले सकते हैं फाइल Very good. Very good. How many of you have generated the compounds? Generated the compounds? Very good. How many compounds do you get? If you go to the table, go down, you will get the roll number records. How many compounds do you get? साइकिल्स कैसे डिसाइड करने के लिए कितने आपके ऊपर है आपको कितना कंपाउंड बनाने सिंगल कंपाउंड बनाने it's completely on you all right काउंट कैसे करना है अभी हो जाएगा तब टेबल आ जाएगी आपके पास टेबल आ जाएगी कंपाउंड आ जाएंगे lot many compounds generated very good table option है यहाँ पे लेफ्ट देखिए टेबल है लोअर लेफ्ट
Yes. Get all the compounds, right? इसमें small भी होंगे, large भी होंगे, जैसे आपने criteria set करा है, इसको expand करिए, expand, yes, table, lower check corner, very good, sir. Get इस तरह को close कर दो, so go to the table, then lower that corner, table, right, compounds, very good. पेन ड्राइव में है किसी के पास पेन ड्राइव मुझे पता है पेन ड्राइव चाहिए यहाँ पे विद डेटा वॉरियर डॉट msi वेरी गुड बहुत सारे स्टूडेंट ओके बड़ी स्क्रीन यस फाइल ओपन करनी है आपको आपको तो आपने कहाँ पे रखी है डेस्कटॉप पे कौन है सिंगल कोड आ रही है फाइल गलत यहाँ डेस्कटॉप पे जाइए यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखिए दो चीज फाइल ओपन सो जिन जिन के हो गए हैं we will do what? We'll calculate the properties, right? So your professor has given you the compounds, your manager has given the compounds, and they ask you to design new sets of similar compound, the better compound, the more promising compounds, and now your turn is to calculate properties, right? So how do we calculate properties? We'll do a very specific property calculation module in the software. We'll go from the structure. The structure है ऊपर chemistry, right? Chemistry. We'll go to from chemical structure. Chemistry from chemical structure. Calculate properties. दिख रहा है आपको calculate properties? Yes, sir. Click on calculate properties. Now there are multiple tabs in the calculate properties. One by one you select some of the properties like क्या होना चाहिए compounds में? कोड लगा हुआ है आगे क्या करें? ठीक है क्या करें?
हाँ फोटो केमिस्ट्री करेंगे, फोटो केमिस्ट्री एक्सपेंड करेंगे सब build evolutionary library default को select आपका structure column में data है तो from structure column yes ये आगे ना कम at criteria molecular weight at criteria molecular weight से किस molecular weight का फॉर्म बनाना है केमिस्ट्री कितना 400 से कम बनाना है और बनाना है से 250 लिख दीजिए और कुछ लिख सकते हैं ठीक है सेंचुरी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू रहे हो ना, इसको हो रहा है बस होता है ये ऑफलाइन हो रहा है इसको एक्सपेंड कर लीजिए टेबल पे जाइए आगे राइट गो टू टेबल ठीक है एक बार डेटा वॉरियर में जाइए गो टू डेटा वॉरियर नेटवर्क लॉस फाइल ओपन स्पेस सर्च सर सर इसके पास the period is बहुत ऑप्शंस होते हैं सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो कहाँ पे था आपकी फाइल में ये फाइल आपके डॉक्यूमेंट में सेव है रिमोट से कहाँ से सिस्टम ऑफ रो देखिए क्या मैजिक कर रखा है फाइल देखिए और ठीक क्या करना है डबल कोट्स करना है डबल कोट्स में कंट्रोल हो स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर डॉट कॉल करिए ओपन करिए सर इसके बाद से फाइल पर ओपन गो टू
chemistry. Chemistry. Very good. Next, default position. Default position. Default. From the structure column, इस structure column से structure चाहिए. So from the structure column, देखिए आ गया ना same. Approved drug की तरह compound बनाओ. Click here. Click here. This molecular weight, कहाँ से कहाँ तक का बना रहे हैं आप? 300 to 500. Right. Select more properties. Select properties. Ligand efficiency को छोड़ के properties जैसे cumulogenic, reproductive effects, irritant, nasty functions. So अभी आप देखिए मैं कौन कौन सी properties select करता हूँ. You can also select them. Very good. You all are on the same page. Very good. This is very good. So first is total molecular weight I want to calculate. So first tab name is drug likeness. That's the first tab, right? What's the second tab? Ligand efficiency and toxicity profile. Third is atom count, fourth ring count, functional groups, ionization and 3D. तो हम सब में थोड़ा थोड़ा select कर लेते हैं, ठीक है? So first में molecular weight, seal of the atom bond acceptors, atom bond donors, surface area, topological नहीं रहने देते, drug likeness, and we'll go to the toxin shape. बहुत ध्यान से सुनना है आपको. कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने क्या करा है सर, एक ही वर्ड के दो चीजें सेलेक्ट नहीं करी है. फॉर एग्जाम्पल log P है तो log S सेलेक्ट किया है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है तो एवरेज नहीं किया है, ठीक है? ऐसा तरह से कर लीजिए. टॉक्सिसिटी एंड शेप में एक बार देखिए, यू हैव म्यूटाजेनिक, ट्यूबरोजेनिक, reproductive effects, irritant, nasty functions, molecular flexibility, come molecular complexity. Right? नहीं, इसमें इंटरनेट का काम नहीं है. Don't worry. There is no internet required here. Go to chemistry, build evolutionary library, molecular weight, give the range 300 to 400. इसको delete करें. Okay sir. इसमें भी select करना right? Mutagenic, tuberogenic, expect करिए हो रहा है. कोई इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं. ठीक है? Go to chemistry. From chemical structure, calculate properties, second option. Very good. यहाँ पे select करना है. Third tab है atom count. Select the atom count. Carbon कितने, nitrogen कितने, oxygen कितने, just count it. Atom counts, let me count. Electronegative atom, non-hydrogen atom, metal atom, जो कि है नहीं. Stereo center count, sp3 carbon, which is fine. Rotatable bond, ring closure count. Okay. Come to ring counts. The size of the largest ring, small ring count. Select few more options. Aromatic ring counts, small, saturated, hetero ring count. Okay.
Come to functional group. Functional group. Functional group, amide nitrogen, amine count, alkyl count, aryl count, aromatic nitrogen atom count. Okay. Ionization not required. 3D, don't do 3D, otherwise it may take a longer time. Okay. Let's say start. ओके कर देते हैं एक बार, ठीक है? सर फंक्शनल ग्रुप रिपीट कोई सा भी कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन में टाइम लेगा थोड़ा सा। कोई भी रहना थर्ड लेना सेकंड आयोनाइजेशन एक बार कैलकुलेशन स्टार्ट योर कैलकुलेशन। स्टार्ट योर कैलकुलेशन। सर आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन नहीं है, 3D 3D में भी नहीं, 3D में भी नहीं। फिर ओके कर दे सर ओके, यस, कर दीजिए। ओके, देखिए कैलकुलेशन हो रहा है, कैलकुलेशन इज इन प्रोग्रेस। हो गया कैसे हुआ सर के बड़ी कंपाउंड कैसा है, नहीं कैसे बताओ? आ रहा है? कुछ कैलकुलेट करवा रहे हो, हो गया था और सबूत है। आप मेरे को इसमें बता सकते हैं ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो म्यूटाजेनिक
irritant right? All right, I think we should take a break now and refresh yourself, come back, and we'll can identify your सबको देखना तो सवाल बोलते हैं आपस में बात करिए टीम पे कि कैसे निकालना है क्या ढूंढना है how you can do that and then write okay so take a 10-minute break come back now come back after that and we'll do it okay This was a run करने दिया